اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت بلا تکلیف پریشانیوں سے، ہر قسم کے جاندار بے جاندار زہریلے سرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور کبھی بھی اولادوں سے کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمیشہ تیرے امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر فرما، ہمارے اہل و عوال ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے میرے پروردگار کن فیکن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں کو پیار کرنے والے، مجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اے میرے رب سب کے دلوں کی مراد پوری فرما، آمین۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے دروازہ پر دستک دیا۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھایا کہ جا کر فقیر کو دے دے، تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اس حد تک کہ کچھ عرصے میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آ کے فقیر کو کچھ اٹھا کر دے دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا یہ فقیر جو دروازے پہ آیا ہے میرا پہلا شوہر ہے، جو بہت مغرور اور متکبر تھا۔ اس نے دروازے سے فقیر کو کھانا دینے سے منع کیا تھا، آج وہ خود دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ فقیر میں ہی تھا جس کو کھانا دینے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ گاؤں کے کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ ایک عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، اس کی ماں بولی واہ دیکھو میرا بیٹا انگلش میڈیم میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری عورت کا لڑکا گزرا، اس کی ماں بولی واہ دیکھو میرا بیٹا BSc میں ہے۔ تیسری عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، دوسرے بیٹوں کی طرح اس نے بھی اپنی ماں کو دیکھا اور ماں کے پاس آیا، پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، دوسرے ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور بولا چل ماں گھر چل۔ اس کی ماں بولی وہ میرا بیٹا مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر باقی دونوں عورتوں کی نظر جھک گئی۔ اس کہانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی تمیز اور اخلاق نہیں سکھایا جا سکتا۔ اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں ان کو اپنی کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اے مالک دو جہاں ہمیں اپنی مضبوط پناہ میں محفوظ رکھ، ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کے شیطانی خاصلت سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمارے تمام زندہ و مردہ، حاضر و غیر حاضر، چھوٹے بڑے، مرد عورت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جب تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ اپنی عزت کے طفیل ہم پر ہر حال میں مہربان رکھ اور ہمارے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے سب گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو دنیا و آخرت میں تیرے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جب تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے،
जो सीधा दिल पे असर करती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत करता है जिन लोगों से उनकी किसी किस्म की मफाद की तवक्को नहीं होती। जिंदगी में सुकून अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से आएगा। जिंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे खास मददगार बन जाते हैं, हमारे अज़ा और जवारा की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। वो हमारे इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है उस पर हम खुश और राजी हो जाते हैं। अल्लाह की बरकत को देखो, वक्त सारे ही गुजर जाते हैं, वक्त नहीं रुकता, लेकिन खुश नसीब है वह शख्स जो अल्लाह को पा लेते हैं। अपने मुश्किल वक्त को सजदों से भर दें, अपने गमों से दुआओं के शजर उगाएं, अपनी तकलीफ को अल्लाह से बांटें ताकि राहतें मिले तो फख्र हो। मैंने बुरे वक्त में भी अपनी रब की लोगों से शिकायत नहीं की। एक ऐसा सुकून बख्श जुमला है, अगर आप वाकई इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि जब वह मौजूद है तो आपको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो बहुत मंसूबा साज और हर चीज का निगहबान है। यह जानकर आप भी अच्छी तरह सो सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है। एक बात की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा और बहुत सामान था, लेकिन वो आदमी बहुत कंजूस था। वो किसी को कुछ नहीं देता था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को देखा। वो गरीब आदमी बहुत भूखा था। उसने उस आदमी से खाना मांगा, लेकिन अमीर आदमी ने उसे खाना नहीं दिया। उसने उसे भगा दिया। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। वह एक मस्जिद में गया। उसने अल्लाह ताला से दुआ की। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे अमीर आदमी से बदला लेना है। मुझे अमीर आदमी से बदला लेने की ताकत दे। अल्लाह ने गरीब आदमी की दुआ कबूल की। उसने गरीब आदमी को एक ताकत दी। गरीब आदमी उस ताकत से अमीर आदमी के घर चला गया। उसने अमीर आदमी का सारा पैसा और सारा सामान ले लिया। अमीर आदमी बहुत दुखी हुआ। वो गरीब आदमी के पीछे भागा, लेकिन गरीब आदमी गायब हो गया। अमीर आदमी बहुत परेशान था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ। वो एक मौलाना के पास गया। उस मौलवी से सब कुछ बताया। मौलवी ने अमीर आदमी से कहा, ये अल्लाह की तरफ से एक सजा है। तुम बहुत कंजूस थे, तुम किसी को कुछ नहीं देते थे, इसलिए अल्लाह ने तुझे सजा दी है। अमीर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। उसने अल्लाह से माफी मांगी। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी कंजूसी नहीं करूँगा। अल्लाह ने अमीर आदमी की माफी कबूल की। उसने अमीर आदमी को उसकी ताकत वापस दे दी। अमीर आदमी बहुत खुश था। उसने मौलवी का शुक्रिया अदा किया। उसने मौलवी से कहा, मैं अब कभी कंजूसी नहीं करूँगा, मैं हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। अमीर आदमी अपने घर वापस चला गया। उसने अपना सारा पैसा और सारा सामान गरीबों में बांट दिया। वो अब कभी कंजूस नहीं था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजूस आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कंजूस आदमी शैतान का दोस्त है। कंजूस होना एक बुरा गुनाह है। कंजूस आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आप मेरे दिल से हर वो मोहब्बत निकाल दें जो आंखों को तो अच्छी लगती है मगर मेरे दिल को बीमार कर देती है। मैं पनाह चाहती हूँ आपकी हर उस जज्बे से जो बेकार है और मेरे रूह के लिए बोझ है। दोस्ती वह है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की मुखालफत में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। दिल ना राजी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वह जो दिल
दुआओं में भी मांग नहीं सकते, जिन्हें दुआएं भी हमारे पास नहीं ला सकती। आपने कभी सोचा है, बाज़ दफ़ा वो चीज़ हमारे पास पूरी दुनिया होती है, दिल की दुनिया, तो क्या ज़मीन पर इंसान दिल के दुनिया के बगैर जिंदा रह सकता है? जिंदगी को कभी यह समझ के ना गुजारना कि यह हमेशा बाकी रहेगा। अरे यह तो तकलीफों का घर है, इसमें कोई अक्लमंद क्यों जीना चाहेगा? इंसान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह किसी पर भी बोझ बनाने से पहले अपने पास बुला ले। यह जो किसी के सहारे जीना पड़ता है बड़ा तकलीफ देह होता है। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी नुकसानदेह होता है। इंसान को थोड़ा अफसाना भी होना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ख्वाब भी होना चाहिए कि जब भी आप जिंदगी के भाग दौड़ से थक जाएं, तो आंख बंद करने पर यह ख्वाब आपके अंदर मुअत्तर एहसास पैदा करे। इंसान जितना गुनाहों से बचता है, उतना आंखों से पर्दा हटता है। उन लोगों की हकीकत नजर आने लगती है, धोखेबाज लोगों से पहले ही वक्त आती है। यह हिदायत है, यह आपको कुरान से ही मिलेगी और यह कोई नहीं सिखाएगा। वक्त हर किसी को सिखा देता है। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वह लौट के जरूर आता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा सही इंसाफ करता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा अपनी अमान में रखना, उनको हर आफत बला तकलीफ परेशानियों से हर किस्म के जानदार बेजानदार जहरीले सिरे से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और कभी भी औलादों से किसी भी किस्म की आजमाइश में मत डालना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमेशा तेरे अमान में रखना। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों को बेहतर फरमा, हमारे अहलो अवाल हमारे वालिदैन की माग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक तमाम बीमारियों को शफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे औलादों को नेक और साले बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार कुन फयकुन के मालिक, 70 माओं से बढ़ के अपने बंदों को प्यार करने वाले, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरे करीमी का वास्ता, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस मुबारक रात के सदके मेरी दुआएं कबूल फरमा। मैं तेरी हकीर सी बंदी तेरे आगे हाथ फैलाए बैठी हूँ, मुझे मायूस ना लौटा। मेरी बरसों से हर पल मांगी जाने वाली दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। ऐ मेरे रब सबके दिलों की मुराद पूरी फरमा। आमीन। क्या आपने कभी ऐसे शख्स से मोहब्बत की है जिसे आप मिले भी नहीं? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? हजरत बिलाल की आमद और अजान का यह वाक़या बेहद मुअज्जर और दिल को छू लेने वाला है। हजरत बिलाल की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इजहार हमें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने पर तलकीन करता है। हजरत बिलाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब थे, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद शाम चले गए और वहीं बस गए। एक अरसे बाद ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई। बिलाल हमें मिलना क्यों छोड़ दिया? आँख खुलते ही बिलाल मदीना के लिए रवाना हो गए। कई दिन की मुसाफिर के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मस्जिद में हाजिरी दी और रोज़े रसूल पर पहुंचकर बेहोश हो गए। अहले मदीना ने कहा, एक बार वही अजान सुना दें, सरकार के जमाने वाली। बिलाल ने माजरत की कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने हसनैन करीमी से कहलवाया, अब इनकार नामुमकिन था। जब अजान शुरू की तो अहले मदीना रो पड़े, दिल काबू में न रहे। प्यारे आका का जमाना ताजा हो गया। औरतें और बच्चे सब निकल आए, गम से निढाल बेकरार हिचकोलियां बांधती थी। जब बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो लोग चीखे मारकर रोने लगे। बिलाल की नजर मिंबर रसूल पर पड़ी। मिंबर खाली था, सरकार नहीं थे। खाली मिंबर देखकर वह घुटनों के बल गिर पड़े, बेहोश हो गए, अजान मुकम्मल ना कर सके। जब होश में आए तो रोते हुए शाम की तरफ रवाना हो गए। हम इस वाक़े से सीख सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाती है और उस मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हजरत बिलाल की अजान ने मदीना मुनव्वरे में ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे रसूलुल्लाह जिंदा हूँ।
वाकया हमें बताता है कि मोहब्बत कैसे दिलों में घर करती है और लोगों को किस तरह से मुतासिर करती है। या अल्लाह, जैसी मोहब्बत भी हमारे दिलों में भर दे, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो लोग चीखे मार कर रोने लगे। बिलाल की नजर मिंबर रसूल पर पड़ी। मिंबर खाली था, सरकार नहीं थे। खाली मिंबर देख कर वो घुटनों के बल गिर पड़े, बेहोश हो गए, अजान मुकम्मल ना कर सके। जब होश में आए तो रोते हुए शाम की तरफ रवाना हो गए। हम इस वाक़े से सीख सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाती है और उस मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हज़रत बिलाल की अज़ान ने मदीना मुनव्वरे में ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे रसूलुल्लाह जिंदा हूँ। यह बताता है कि अज़ान सिर्फ एक दावत नहीं बल्कि ईमान की एक अलामत भी है। सहाबा किराम की रसूलुल्लाह से मोहब्बत का यह वाक़या हमें बताता है कि मोहब्बत कैसे दिलों में घर करती है और लोगों को किस तरह से मुतासिर करती है। या अल्लाह, जैसे मोहब्बत भी हमारे दिलों में भर दे, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता को पैदा किया जिसका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है। इसका सर अर्श के नीचे है और पाँव सातों आसमान तले जमीन पर आबाद मखलूक के बराबर इसके पर हैं। मेरे उम्मत में से कोई मर्द या औरत जब मुझ पर दरूद शरीफ भेजता है तो वह गोताए जन होता है, फिर बाहर निकलकर अपना बाजू यानी पर छाड़ता है तो इसके पर से कतरे गिरते हैं और अल्लाह ताला हर कतरे से फरिश्ता पैदा करता है जो उसके लिए कयामत तक दुआए बख्शिश मांगता है। यह एक अजीम नेमत है जो हमें अता की गई है। अपने दरूद भेजने की आदत बनाएं और अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करें। अगर आपको यह मालूमात पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आप अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए बेदार करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को गहरी नींद से कैसे बेदार कर सकते हैं ताकि वह नमाज अदा करें। एक दिलचस्प सवाल के जरिए इस मौजू की अहमियत को उजागर करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को दुनिया की आग से बचाने के लिए सख्ती करेंगे तो आप उन्हें जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्यों नहीं। एक औरत ने एक आलिम से पूछा, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे क्या करूं कि फजर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद उनको उठा सकूं। आलिम ने पूछा, तुम उस वक्त क्या करोगी कि जब बच्चे गहरी नींद सो रहे हों और घर में आग लग जाए। औरत ने जवाब दिया, मैं उन्हें जगाऊंगी। आलिम ने फिर पूछा, अगर उनकी नींद गहरी हुई और ना उठे। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उन्हें गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए उन्हें आग से बचाकर बाहर ले जाऊंगी। तब आलिम ने जवाब दिया, अगर तुम उन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए यह करोगी तो फिर उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग से बचाने के लिए ऐसा ही करो। यह एक सबक है कि हमें अपने बच्चों के रूहानी तरबियत की अहमियत को समझाना चाहिए। फजर की नमाज को छोड़ना उनके लिए उस आग के तरह है जिससे बचाना फर्ज है। याद रखें, अगर हम अपने बच्चों को सही राह पर गामजन करना चाहते हैं तो हमें खुद भी उसी राह पर चलना होगा। उनकी तरबियत में वक्त देना होगा, उन्हें जगाना और खुद भी नमाज के लिए तैयार रहना जरूरी है। आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। एक
دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بلا آخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آیا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کے کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں جلائے۔ طویل سے طویل تقریر پر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر اسے اپنی ضرورت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا، حضرت ابو بکر نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کہی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی۔ آپ کھا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ سے تمام چیزیں پی کر نکال ڈالا۔ حضرت ابو بکر نے خدا کی ڈر سے انہوں نے فوراً اپنی غلطی سدھار لی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا خوف ہے جو ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ میں دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہو تو یقین کیجیے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے اور ایک نہیں۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ صرف 3 جگہ جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیا ہے۔ 1 ہمیشہ شراب پینے والا، 2 والدین کا نافرمان، 3 وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود سے برقرار رکھتا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر آنکھوں کی نظر سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر قرآن کو دماغ کی سوچ سے دیکھو گے تو عالم نظر آئیں گے، اگر قرآن کو دل کی نظر سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر قرآن کو روح کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن میں خود یدی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام کا عہد لیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ شخص جس نے کسی کا مزدوری کیا، پھر کام تو اس نے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت، جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ جس کا مجھ پر حق ہے وہ آ کر لے لے، تو یہ اعلان سنتے ہی مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور مسجد نبوی میں آنسو کا سیلاب پڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اسے بہترین فرشتوں
फरिश्तों की मजलिस में मैं उसे याद करता हूँ, और अगर वह मुझसे एक पालिश आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त, जब मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान करवाया कि जिसका मुझ पर हक है वह आकर ले ले, तो यह ऐलान सुनते ही मदीना में कोहराम मच गया, और मस्जिद नबवी में आंसू का सैलाब बह पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वह मुझे मजलिस में याद करता है तो उससे बेहतरीन फरिश्तों की मजलिस में मैं उसे याद करता हूँ, और अगर वह मुझसे एक पालिश आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा इराक के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं मस्जिद के बाहर ही फर्श पे सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से घसीटकर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदातरस आदमी मुझे अपने घर ले गया। वह शख्स चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ा करता था। सुबह हुई तो उस शख्स से मैंने पूछा कि क्या आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने से कोई फायदा भी हुआ क्या? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हो गई, सिवाय इसके कि इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही इमाम बिन हम्बल हूँ, और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। हज़रत उमर ने भेष बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? औरत कहने लगी, या तो उमर का इंतकाल हो गया है, या आप खुद उमर हो, वरना उमर के होते हुए किसी की इतनी जरूरत नहीं कि वह राह चलती औरत से सवाल कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया चाहता है वो आखिरत खराब कर लेता है, और जो आखिरत चाहता है वो अपनी दुनिया खराब कर लेता है। इसलिए जो चीज़ बाकी रहने वाली है, इसलिए फना होने वाली चीज़ों पर तरजीह ना दो। क्या आप जानते हैं कि जमीन में पानी गिरते ही पानी जज्ब हो जाता है, मगर जमीन में खून जज्ब क्यों नहीं होता? तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जमीन के खून ना चूसने की वजह क्या है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इनका खून 7 दिनों तक जमीन पर रहकर जमीन के अंदर जज्ब हो गया, और उसे जमीन ने पानी की तरह पी लिया। खुदावंद आलिम ने काबिल से फरमाया कि तेरा भाई कहाँ है? इसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई निगहबान था। इरशाद हुआ, तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। काबिल ने कहा, पर मैंने उसे कत्ल किया है तो उसका खून कहाँ है? इसी के बाद से खुदावंद आलिम ने जमीन पर किसी का खून चूसना हराम करार दिया। यही वजह है कि जमीन में खून जज्ब नहीं होता। इसी वाकया के बाद जमीन ने किसी का खून नहीं चूसा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई चीजों की शिकायत कभी न करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपनी जाति मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैरों के सामने अपने दोस्तों की, रुखसत के बाद अपने मेहमानों की। किसी से रिश्ते तोड़ना एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है, लेकिन जहाँ आपकी इज्जत, जरूरत और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। अपने वह नहीं
ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جنت والے جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب غلطی ثابت ہوتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل جیت پر اڑ جاتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیاں چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتے ہیں، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جنت والے جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب غلطی ثابت ہوتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل جیت پر اڑ جاتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیاں چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتے ہیں، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے۔ انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو انسان کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگتا ہے، لیکن جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو۔ اچھے دونوں میں سرمایہ اور برے دونوں میں محتاج ہوتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو وہ ہوتی ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضائع کرنا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکنا وہی جانتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکر ادا مت کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے میں ختم اور شکر کرنے میں خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظوں کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا کہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعائیں قبول ہو گئی۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ہمیشہ سچے لوگوں کی دوستی رکھو۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو۔ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھنا۔ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تم کو بیوقوف سمجھیں گے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو۔ محبت ہوئی تو مل جائے گی، اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جب خدا سے محبت ہوتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ درود شریف واحد ایک ایسا عبادت
اسے ایسی چیزوں کی طلب لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی ہے۔ اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی تڑپ رہا ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ خاموشی اختیار کرو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دھوکہ دینے کا 1000 طریقہ ہے، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ بہترین راستہ وہ ہے جو آپ کا عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ راستہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو تمہیں اچھا لگے اسے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکل کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکل کا حل ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کا کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو اسے ماضی کے گناہ پہ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ نمک کی طرح رہو۔ کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو بہت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھ سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جیسے اللہ اپنے بندوں کی توبہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اسے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دوستوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے دوست کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ اس سے اپنی دوستی خراب ہونے سے ڈرتا ہے مگر اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ ایسا دوست جو ہمیں گناہ سے نہ روکے وہ ہماری آخرت کا دشمن ہے۔ وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کی خاطر ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش کو آواز کرتا ہے، اور شرمگاہ کی تشدد یا تکذب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا باوضو سوتا ہے، پھر رات میں کسی بھی وقت چھو کر اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدین باحیات ہیں۔ ایک دوسری روایت سے اس طرح الفاظ ہے کہ
दबाव का शिकार ना बनाएं। बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे के वो सारी खुशियों को देख सके जो उन्होंने अपने औलाद के लिए मांगी होती है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अपनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी सोचें सीधी कर लेते हैं। अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। पता है माचिस आज इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। इंसान के लिए सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल हो, और अगर यही साफ ना हो तो चमकते चेहरे किसी काम के नहीं। जिंदगी के लिए बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक की सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपकी शिकायत न करे, यकीनन उस शख्स से ज्यादा आपको मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, कुछ देकर भी हमें फकीर रखती है। किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। हर राह, हर दरवाजा आप पर बंद हो सकता है, मगर रब के दर का दरवाजा आप पर कभी बंद नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है। आजकल वह लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। अगर अल्लाह वह चीज़ ले सकता है जिससे खोने की आपने कभी तवक्को नहीं की थी, तो उसकी जगह ऐसी चीज़ दे सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कभी कभी आपके दिल में दर्द होता है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो मुमकिन थी लेकिन मुमकिन ना हो सकी। खामोश और अदब दोनों इंसान की कद्र और कीमत में इजाफा कर देते हैं। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है। बातें तब तक समझ नहीं आए जब तक खुद पे ना गुजरे। बुरा औकात बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। इंसान का फितरत है, ला हासिल को रोता है और हासिल को रुलाता है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता मुश्किल हो, यादगार होना चाहिए। जिंदगी में किसी की गई गलतियाँ आपको सोचने, बोलने और समझना सिखा देती है। वक्त बताता है सबकी औकात, बड़ी बातें तो सभी कर लेते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। बेशक रब हिम्मत से ज्यादा दुख नहीं देता, दुख बड़ा हो तो हिम्मत भी बड़ा देता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला बाकी है तो आपने कुछ नहीं खोया। शाखाएं रहेंगी तो फूल और पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरा है तो अच्छे भी आएंगे। हम किसी के लिए आसानियां पैदा करें या मुश्किल, वह एक न एक दिन हमें वापस जरूर मिलती है। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ समझते हैं। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया उससे नरमी छीन लेती है। गजब की है यह मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदर का मालिक एक आंसू पसंद करता है। इंसान की समझ का मयार बस इतना है। अगर जानवर कहा जाए तो नाराज और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हालांकि शेर भी जानवर है। औरत अमीर मर्द नहीं चाहती, खूबसूरत या शायर भी नहीं। वह एक ऐसा मर्द चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने दिल पर रख कर कहे यह घर तुम्हारा है। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी कराने के बजाय उसका इलाज कराएं। किसी की बेटी नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपका शिकायत ना करे, यकीन मानिए उस शख्स से ज्यादा आपको मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। लोग हमारे अंदर हमारा दुख नहीं तलाश करते, उनको बस इस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ। मर्द और औरत की फितरत में एक वाज़ेह फर्क है। मर्द को हर औरत अपना सकती है, मगर औरत को हर मर्द अपना नहीं बना सकता। लोग बेजान चीज़ों को तोड़ने पे बेरहम होते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने पे कोई बेरहम नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। गलतफहमी और गुस्से से ही ताल्लुक टूटता है, वरना कौन गले लगाकर कहता है आज से मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक
धूमधाम में ईद की खुशियाँ से नवाजता है तो वो आपका सालों का किया गया सब्र रायगा कैसे जाने दे सकता है। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करेगा। तकदीर पे शिकवा ना करें, इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादों को समझ सके। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से पिछड़ जाते हैं। अपने चाहने वालों को वक्त दिया करो, वरना किसी और ने दे दिया तो बेकदरे रह जाओगे। वक्त गुजरने के बाद अगर कोई कद्र करे तो उसे कद्र नहीं अफसोस कहते हैं। मुफलिस ने उठाकर एक कूड़ेदान से कमीज, कहा शुक्र है खुदा मेरे बच्चों की ईद हो गई। यह अलग बात है कि मैं किनारे पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कौन कितने पानी में है। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार एक बाप सारी जिंदगी निभाता है। हर दोस्त को हर रात न बताओ। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमेशा सारी उम्र के लिए याद रहती है। बुलंदियों से खड़े होकर नीचे हकारत से मत देखो, बल्कि यह सोचो कि आप भी नीचे खड़े थे। मोटरसाइकिल चलाने वाली बेटियों का एहतराम करें, न उन्हें डराएं न परेशान करें, क्योंकि वो शौक से नहीं मजबूरी से ट्राई करती हैं और अपने वालिदैन के लिए बेटे का किरदार अदा कर रही हैं। आज तक इंसान कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तआसुब और जहालत को फेंक सके। नफ्सियात के मुताबिक इंसान को मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे मुस्तकिल मोहब्बत की जरूरत होती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क और इज्जत का दुश्मन हो। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जितना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लूट का वक्त हो चुका होता है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिन लोगों के लिए हम एक फजूल ख्यालात के अलावा कुछ नहीं। लोग आपके लिए खुद ऐसा हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और बाद में ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वह मजलूम है। सारा कसूर तुम्हारा था। जब कोई दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो उस बंद दरवाजे पर दस्तक देकर अपने इज्जत नफ्स को न गिराएं। जब वक्त पर जो लफ्ज भी ना कहा जा सके तो वक्त गुजरने के बाद लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनने का कोई फायदा नहीं होता। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं होता कि कुछ लम्हे न निकाल सके। बहुत लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही है और हम उन्हें चुपचाप अपनी नजरों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। गुजारे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। जिंदगी ऐसा जो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनूं या ना बनूं, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बनूं। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बाप की इज्जत बेटियों के हाथ में होती है और जायदाद का कागज बेटों के हाथ में होते हैं। जब समाज को अकल और ईमान की जरूरत नहीं तो रिश्तों का एहतराम कहाँ से आए। हजारों सोचें बुझा देती है, मगर एक सजदा सुलझा देती है सब। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फर्क। आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। फिक्र ना करो, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ हूँ। यह जुमला कसरत से वह लोग बोलते हैं जो जरूरत पड़ने पर कभी भी मुयस्सर नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए आपके पास दोबारा आते हैं कि आप अब भी पहले जैसे बेवकूफ हैं कि नहीं। अपने आंसुओं के लिए किसी का कंधा तलाश नहीं किया करें, ऐसे भरम खो जाया करता है। अपने आंसुओं को तरबियत दें कि कहाँ रोना है और कहाँ नहीं। वहीं रोवे जहाँ हमेशा आपका भरम बाकी रहे, और बेशक मेरा अल्लाह ही भरम रखने वाला है। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते दोनों पहले जैसे मिठास और जायका कभी नहीं रहता। दुनिया का हर एक आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना नहीं चाहता। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है तो रिश्ता बेवजन हो जाता है।
शख्स आपकी इज्जत नहीं कर सके, वो मोहब्बत को दूर किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। इज्जत तो सबको चाहिए, मगर लोग वापस देना भूल जाते हैं। जब दिल टूटता है तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाती है। कभी कभी इंसान को अपने मुखलिस होकर चलने पर भी रोना आता है। इंसान मोहब्बत से ज़्यादा यह चाहता है कि उसे समझा जाए। आग में वो आग कहाँ जो लोगों की बातों से लगा देती है। कभी कभी इंसान उस रिश्ते को भी ठुकरा देता है जो उसका सुकून होते हैं। जिनकी झूठ का मैं मान रख लेती हूँ, वह समझते हैं मुझे बेवकूफ़ बना लिया। जिसको कह दो कि वही ज़रूरत है, वही दामन छुड़ाने लगते हैं। खतरनाक होते हैं वह जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती नुकसान नहीं पहुँचाती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लग गए हैं तो आप बेकार हैं। दुनिया की रंगीनियों से सीखा है यह सबक, इंसान भी अर्जी है और जज्बात भी अर्जी है। कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे मुस्कुरा कर बताएं कि कुंडी दरवाजे के दूसरी तरफ भी होती है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वादा नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं। शौक परवाज का रखते हैं तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती हीरा माँ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। वक्त साबित कर देता है कि खुदा की फजल कभी गलत नहीं होते। सोच अगर खूबसूरत होता है तो अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देता है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहाँ कैसे यह मेरा रब जानता है। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। मौत सट्टा है जिंदगी का, एक दिन उतर ही जाना है। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। खामोशी भी किसी को यह बताने का तरीका है कि तुमने अच्छा नहीं किया। लोग आपके अंदर दुख का तलाश नहीं करते, उन्हें उस तमाशा को खोज होती है जो आपके साथ है। जो आंसू पी ले जाए वह आंसू जहर से कम नहीं होता। भले देर से ही सही मगर अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, यकीन रखो। अपनी परेशानियों को नमाज में बदल दो, अल्लाह मसाइल को नेमत में बदल देगा। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। हंसने पे भी आ जाता है बेसख्ता आंसू। कुछ लोग मुझे ऐसी दुआ देकर गए हैं। खतरनाक होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैदाइश के तौर पर इंसान ना ही फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल के बदौलत फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है और शैतान से भी बदतर। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा जलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए जलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। लोगों का घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मसला उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। बेशक रोने से हालात बेहतर नहीं होते मगर दिल ज़रूर हल्का होता है। हसद करने वालों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी खूबसूरती उसके वफा में होती है। कोई इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। कभी भी अपनी बेटियों की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करना। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी अरसे में वो खुद मर जाती है। लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कदमे इजाफे का बाइश बनती है। बदतमीज आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। ताउम्र यह सबक याद रखें, ताल्लुक़ और इबादत में नियत साफ रखें। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामोशी पर नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़े। मुश्किल के बाद आसानियाँ सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। इख्तिलाफ़ात के बावजूद किसी
किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने का दलील है। दूसरे को गलत नहीं, खुद को सही साबित करें। जिससे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाले मुसीबतों से नहीं घबराते। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं। कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। अगर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उसे अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह की अदालत में सिफारिश नहीं चलती। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलतफहमी में अपना अच्छा दोस्त गंवा बैठो। गजब मुकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे नींद गंवा बैठे। मर्दों ने हक और सब्र नहीं छोड़ा, ख़वातीनों ने ख्याल और पर्दा नहीं छोड़ा। उरूज के वक्त औकात में रहो, क्योंकि जवाल पूछ कर नहीं आती। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी का कदर न आए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतना मत दो कि तुम्हारा इज्जत करना भूल जाए। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ न हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जो लोग कील बनकर चूकने लगे उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा रास्ता हिदायत पर चल पड़ें। रूट जानने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। अगर कोई आपका फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले कम होते हैं। जो दिल से सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। सुकून चाहता हूँ अल्लाह, जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिसको रब ने थामा होता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तहानों से गुजर कर पत्थर बन जाता है तो कोई दिल भी दुखा दे तो असर नहीं करता। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। कामयाब लोग अपने फजल से दुनिया बदल देते हैं। वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त नहीं गुजरता, गुजर जाते हैं लोग। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे ना बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। जो आपके बगैर खुश हो तो बस उसे फिर खुश रहने दें। हसद करने वालों के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती, वह तो पहले ही हसद की आग में चल रहा होता है। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होती है, देखने में तो बहुत शफाफ नजर आती है, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना घूंट और कितना पछतावा यह अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती है, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ करते हैं। शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि शौहर और ससुराल वालों को पता चलता है। कयामत वाले दिन सिर्फ बीवी की नाफरमानियों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि शौहर की बदकलामी और हर जुल्म व ज्यादती का हिसाब होगा। बाज़ दफा अच्छे तरीके से अलग हो जाना तकलीफ दे ताल्लुकात बरकरार रखने से बेहतर होता है। नखरे अगर औरत न करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया है। जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को उसका एहसास ना हो, क्योंकि रूहों की जबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। सास दिल बड़ा करे, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा आप ही का होगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पे ना निकालें। उसके माँ बाप भी पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द कर दिया। शौहर ने 2 थप्पड़ मार कर गाली दी, औरत ने गोद में बैठा कर बच्चे की तरफ देखा और समझ गई। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों के बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा मजबूत सहारा उसकी महीना तनख्वाह है, और यही असल हकीकत है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। मर्द का दिल अगर औरत से भर जाता है तो वो 3
काम करता है, अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। बहुत सी शादी औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चे के बाप के साथ रहती हैं। अपनी वालिदैन की एक आवाज पर भाग कर जाया करो। जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब उनकी आवाज सुनने को कान तरस जाते हैं। जब तुम माँ बाप भाई बहन के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। सफर का मजा लेना है तो साथ सामान कम रखना, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखना। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत कभी बोझ नहीं होती। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी पूरा नहीं कर सकती। दूर रहें ऐसे लोगों से जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। अगर कोई लड़की मोहब्बत करे तो जरूरी नहीं कि वो बदकिरदार है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। निकाल कर जिस्म से जान देता है। बड़ा मजबूत होता है वह बाप जो तुम्हें अपनी बेटी देता है। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। जिंदगी जी लें, वरना गुजर तो ऐसे ही जानी है। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। लोग ऐसे ही नहीं चले जाते, तोहफा देते हैं डिप्रेशन का। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकते हैं। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। न जाने कितने जनाजे उठाने के बाद हमें यह एहसास होगा कि एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। औरत अगर बेअकल होती तो पहली दरसगाह माँ की गोद न होती। ज़रूरतों की लिस्ट में सुकून आज भी पहले नंबर पर आता है, जो लिस्ट की बाकी ज़रूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप कुछ खास हैं, सामने वाला हसद का शिकार है। बड़े भाई हों या छोटे, बहनों का गुरूर होते हैं। टूटने का मतलब हमेशा जिंदगी खत्म होना नहीं होता है। कभी कभी टूटने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकते हैं। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां और कमजोरियां छेड़कर हंसने से परहेज किया करो। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं। जब भी लगती है ये किसी की असलियत दिखाती है, ये कुछ न कुछ सिखा देती है। रिश्तों के बाजार में आजकल वह लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। इंसान को उसकी हालत नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालत तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्याल को बदलना आसान नहीं होता। अपने दिल व दिमाग को इस तरह तरबियत कर दे कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। आप अपनी ज़िंदगी की नई बात का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पुराने बातों को पढ़ना नहीं छोड़ देते। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानिंद होता है। सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। हर दिन कुछ ऐसा काम करो जो आपको आपके बेहतर मुस्तकबिल से करीब कर ले जाए। जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो सही चीज़ें आपके गिरफ्त में आती है। जब इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादातर नाकामियों का एहसास होता है तो उसे पता चलता है कि वो कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब था जब उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों की दिखावे पर हंसी आने लगे। खाली पेट, खाली जेब, झूठा प्यार इंसान की ज़िंदगी में वह सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दे, क्योंकि लोग अंदर
सब्सक्राइब जरूर करें। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और इखलाक भी। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसे सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है और वह आपकी मनफी सोच है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो इंसान को गुमराह कर देता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजरों से गिर जाना है। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर तो नहीं। कुछ लोग आपकी ग्रामर से कीड़ा, आपकी असाई से कीड़ा, आपकी राय से कीड़ा और आपकी हर बात से कीड़ा निकालेंगे, लेकिन अपने अंदर के कीड़े को नहीं निकालेंगे। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़ब्त बता देता है कि वह पढ़ा लिखा है या पढ़ लिख के जाहिल है। बुरे वक्त में एक फायदा जरूर है, अपने पराये की पहचान हो जाती है। उम्मीद जब टूटती है तो बंदा के दिल में एक दूसरे के बारे में दुश्मनी आती है, बदगुमानी आती है और बंदा कता तलखी कर बैठता है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़कर हंसने से परहेज किया करो। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद महज ताल्लुक कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशी में तब तक न जाना जब तक वो खुद न बुलाए। मर्द का खामोश और साबित कदम रखना 60 साल की इबादत से बेहतर है। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोते हैं। रिश्ते फूल की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। अच्छी बातें अगर सख्त और तल्ख लहजे में कही जाए तो अपना असर छोड़ देती है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की जात देती है। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची से परहेज करें। बेवजह उदासी का सबसे बड़ा सबब हद से ज्यादा तन्हाई और फरागत है। बहुत जल्दी उठता जाना और बहुत जल्दी मुतासर होने का आदत कर दे। हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि गुमान दिल व दिमाग पर छा जाता है और फिर वही सोचे तकलीफ होती है। जिस तरह का गुमान किया जाता है, जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पलते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक